Namaskar. 92% voting in West Bengal. Some are calling it democracy at its strongest, others are calling it democracy under pressure. The big question is, has Bengal voted for change or has Bengal voted out of fear? And if this isn't a turning point, then what is? 92% voting, imagine. So we have with us Kia Ghosh, who's a Karyakarta of BJP West Bengal. I was going to ask her what is her post or something, but then I read her profile. I think in BJP, whether it's Mr. Modi or Mr. Amit Shah, anybody, Mr. Nadda, they're all Karyakartas. That's what they address each other as, and that's what they claim to be. So, Namaskar, Kia. How are you? I'm doing fine, just tired. Yeah, Voice is gone for a toss, yeah, but I the know. spirits are high. The spirits Hi, are high. hi. Yeah. अच्छा, let's get to the point, Kia. कौन जीत रहा है? Bharatiya Janata Party. জোরে বলতে হবে 29 এপ্রিল আসছে দিন উত্তম বণিককে ভোট দিন। যতদূর পর্যন্ত মাইকের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে প্রত্যেকটা মানুষকে আমি বলতে চাই, ভয় আউট, ভরসাহীন, পদ্ম ফুলে ভোট দিন। ভয় আউট, ভরসাহীন, পদ্ম ফুলে ভোট দিন। ভয়ের কথাটা কেন বললাম? কারণ এই দক্ষিণ 24 পরগনায় এক ভাইপোমণি আছেন, পিসির ভাইপো, তিনি ভয় দেখিয়ে বেড়ান। কালকে রাত্রে শুনছিলাম বা ডায়মন্ড হারবারে কোথায় নাকি বাইক বাহিনী বার করেছে। ইলেকশন কমিশন তাকে ডোজ দিয়েছে বাইক বাহিনীগুলোকে। তাই যারা যারা ভাবছেন 29 তারিখ এখানে আপনারা বাইক বাহিনী, লেঠেল বাহিনী যা বার করবে, মনে রাখবেন সেটা ভাঙা মার হবে নির্বাচন কমিশন এবং যারা পুলিশ আছে, সেন্ট্রাল ফোর্স আছে, সবাইকে বলে রাখছি, অনুরোধ করে রাখছি, সাধারণ মানুষকে বেরিয়ে ধমকে চমকে কোনো লাভ হবে না। কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তুমি গত 15 বছর রাজ্যে যা যা কুকীর্তি করেছো আমরা সবাই সংক্ষিপ্তভাবে বলছি, আরো বলবো, কিন্তু খারাপ কথাটা আগে বলবো নাকি ভালো কথাটাই বলি? আগে ভালোগুলো বলি। যা যা ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার এলে আপনারা পাবেন। প্রথম, আমাদের মা বোনরা বসে আছেন আপনাদের জন্য, দিদিরা 3000 টাকা। Rather, let me rephrase my answer. That was a very spontaneous answer, actually. The people of Bengal are winning this time. This is a more plausible answer because people of Bengal, they wanted change. People of Bengal wanted a government which will work on their behalf, not for families, not for their filling up their own coffers. So this time, the people of West Bengal, they are winning. Acha, BJP spoke about no fear in Bengal. Can you honestly say that voters felt fearless while stepping out to vote? See, Palji, first of all, if you have seen, of course, I mean, you have closely noticed and monitored 2021 polls. Let me get back to 2016 or maybe before that. So, West Bengal has been a ghetto of, what should I say, violence, bloodbath, lynching, death, rape, threats, everything. I mean, you name it, we have it. Which this time, thanks to the election commission, thanks to the stern steps taken by them, this time Bengal has seen a different kind of poll. Bengal, never before we have seen that the CRPF personals, they are approaching ordinary people saying, "आप निश्चिंत हो कि घर से निकलो, वोट मत दान करो, जिसको भी देना है." So this is something, Payalji. This is the first time we have seen, and of course, the numbers, the surge in numbers, it indicates. Now you could ask me that what happens to the deletion after SIR. So, well, I am not American university graduate. I have done my studies very well in India, in West Bengal. And I could say that even I'm not uneducated or illiterate like certain TMC MPs who kind of, like shake their heads and, lat हटा के ऐसे बात करते हुए. ऐसे भी तो If करते you वो भी सही है. So I know the ground reality that the SIR deletion, if I'm not a student of mathematics, but the statistics have shown after the first phase that even after the SIR deletion, the numbers which were roughly around 80, 81%, 82%, it could have risen to 87 max, 86 to 87, but not the 93. The extra 5% surge, it happened due to the people, their spontaneity, due to the fearlessness,
which they felt that this time they could go and cast their vote, which was unheard of. I mean, it's very sad, it's very saddening to, मैं बंगाल की बुराई नहीं कर रही हूँ, I'm a proud Bengali, I'm बांग्ला में, despite of this, पायल जी, I have to say that in Bengal चुनाव मतलब डेथ होगा ही, होना ही है, बम rape and death. फोड़ना ही है। चुनाव के दिन 2023 पंचायत वोट्स, सिविक बॉडी वोट्स, एक दिन में 23 लोगों की जाने गई थी, एक दिन में। कैन यू इमेजिन? सारा तो देश में होता है। कल गुजरात में, yesterday गुजरात में सिविक बॉडी पोल्स हुआ, हमको पता तक नहीं चला अनलेस वी गॉट द न्यूज दैट बीजेपी हैज स्वेप्ट ऑल थ्रू। अच्छा, बीजेपी का, मैं बीजेपी कार्यकर्ता हूं तो बीजेपी की बात करूंगी। अब छोड़ दो, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, यहाँ पर भी तो पोल्स, तमिलनाडु में भी तो पोल्स हुआ था, केरला में भी हुआ था। केरला में सीपीएम, उनका अलग टॉर्चर का तरीका है, वो कभी फुर्सत से बताएंगे। लेकिन ये पोलिंग के दिन, हैव यू सीन अ सीएम मेकिंग स्टेटमेंट्स अगेंस्ट द सीआरपीएफ? क्योंकि सीआरपीएफ यह या चुनाव आयोग, they were doing their work diligently. So people this time felt a sense of fearlessness. They felt empowered that even my vote matters. This inking matters. I am a voice. So of course fearlessness था इस बार। अच्छा, क्या आप मुझे ऐसे कुछ 4-5 फैक्टर्स बताओ, 3-4 कितने भी बताओ, जो मेन फैक्टर्स थे, जो टर्निंग पॉइंट थे, जो आपको लग रहा है कि जमीन पे आपको लगा और ऐसे टर्निंग पॉइंट्स आए कि पूरा इलेक्शन का शेप ही बदल गया, पूरा एक वो ही बदल गया, पूरा उसका रुख ही बदल गया। ऐसे क्या पॉइंट्स थे जो आपको लगा कि बीजेपी कैन विन एंड बीजेपी इज विनिंग अकॉर्डिंग टू? मैं इसका आंसर थोड़ा सा घुमा के दे रही हूँ। आई डोंट नो वेदर यू गो टू किचन और नॉट। मैं तो टाइम मिलता नहीं है, लेकिन कभी कभी और चली जाती मैं 24/7 किचन में हूँ। हाँ। Oh, great, great. Then whenever I'm coming to Delhi, I'll definitely taste one of your पक्का हाथ का पक्का। खाना। हाँ। Yeah. So आप अगर किसी ऐसे पतीले में आप पानी चढ़ाओगे, फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट धीरे हल्का हल्का गर्म होता है, नीचे बूंदे आती है, सिमरिंग होता है। Then one point of time, the water starts to boil. Now compare this with the factors which have happened in Bengal. Over 2016, we have seen all the, chit fund, Rose Valley, Sarada scam, everything happening. कितने लोगों ने सुसाइड भी कर लिया था, उनका सारा जो सेविंग्स था, खास करके जो हाउस हेल्प जो कैटेगरी में है, हमारे डोमेस्टिक स्टाफ जो है, उनका मतलब खून पसीना सींच के जो उन्होंने सेविंग्स किया था, वो पूरा डाल दिया था रोज वैली या शारदा में, चला गया ओवरनाइट। क्या हुआ? कुछ नहीं। ममता बनर्जी उल्टा वो बोल रही है कि इसमें लोगों को मैं उत्साह करी कि अब सिगरेट पियो, सिगरेट के टैक्स से हम लोग साधारण लोगों का पैसा वापस करेंगे। हुआ था, ममता बनर्जी 2016 में कही थी, चलो इतना कुछ हो गया, चलो चलो और कुछ नहीं, इसको स्टैचू कर देते हैं। अब 294 सीट से मैं ही कैंडिडेट, पीपल ट्रस्टेड हर। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू 21 में क्या था? हमने देखा था कि एजुकेशन स्कैम धीरे धीरे बाहर आ रहा है, राशन स्कैम आ रहा है। 21 चुनाव के बाद वी हैव सीन द वर्स्ट काइंड ऑफ पोस्ट पोल वायलेंस व्हिच द नेशन हैज एवर विटनेस्ड। वी हैव सीन, आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल, मतलब ये तृणमूल अपने आप को माँ माटी मानुष की पार्टी कहती है, कितना निर्ममता है इनके अंदर। ये पोस्ट पोल वायलेंस और अम्फान, they collided with each other. Amphan happened in May, और May में ही हमारा रिजल्ट आया था, 2 मई में। तो there is a place in South 24 Parganas called Gosaba. It's an island. वहां पर the girls, the women, every night, and I repeat every night for almost 15 days, वो they used to swim across to a small nearby, छोटा, बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड है, अपना इज्जत बचाने के लिए। एवरी नाइट ये शाहजहां का गुंडा, ये जहांगीर खान का गुंडा, सलीम का गुंडा, ये आते थे औरत को ढूंढने। ओके, they feared वो अम्फान में, that's the reason I mentioned अम्फान। सुंदरबन is Bay of Bengal, it's the Bay region। अपना जिंदगी को दाव पे लगा के अपना इज्जत बचाने के लिए वो गए थे। उसके बाद क्या हुआ? जो बीजेपी सपोर्टर्स है, कार्यकर्ता छोड़ दीजिए, सपोर्टर्स है, उनके घर बुलडोजर से उस घर को बुलडोज कर दिया गया, एकदम धूल में मिलाया गया। और अम्फान के कोरोना के बाद, अम्फान के बाद जब वहां पर जो रिलीफ वर्क जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भेजी थी, इन्होंने दिया नहीं कि तू बीजेपी करता है, तेरा फैमिली बीजेपी करता है, बच्चों को दूध नहीं मिल रहा था। पर्सनली आई एम वेरी थैंकफुल टू द कार्यकर्ताज ओवर देयर। आई अरेंज्ड फॉर अ मिनी वैन, पाउडर मिल्क बच्चों को भेजवाने के लिए। मतलब बच्चे मरे, औरतें, उनका इज्जत चली जाए, लेकिन हमें बदला चाहिए। बीजेपी कैसे किया तुमने? सो दिस इज ममता बनर्जीज गवर्नमेंट। पीपल हैव सीन दैट। देन द राशन स्कैम, इट केम अप, 16,000 crore scam. We have seen the amount of crores and crores of money being extorted by, I mean not extorted,
discovered by the ED officials. Partha Chatterjee, sitting minister, sitting education minister, उनकी girlfriend के घर से. Then Abhaya happened. We have seen how Mamata Banerjee tried to defend the principal who was responsible for all the corruptions, all the wrongdoings, all the threats. उनको बचा के उनको दूसरा हॉस्पिटल में उसको तबादला नहीं, प्रमोशन कर दिया गया. उन्होंने कहा कि इसके दिल में दुख हुआ इसीलिए. और जिसका बच्ची वो मतलब ड्यूटी करने के लिए गई थी घर से, शायद बता के कि मम्मा कल दोपहर को ये खाऊंगी आके, उसका शरीर तोड़ मोड़ के रेप करके उसकी आंखों से आंसू नहीं खून निकल रहे थे अभया की आंखों से, और उसके माँ को दुख नहीं हुआ, उसके फादर को दुख नहीं हुआ. तो ये बहुत सारे फैक्टर्स है पायल जी. द इनसेंसिटिविटी ऑफ द गवर्नमेंट, द मैसिव करप्शन, मैसिव, एंड द काइंड ऑफ गुंडाइज्म, हुलिगनिज्म, दादागिरी. सो एवरीथिंग आई थिंक इट माउंटेड अप. कोई एक ट्रिगर फैक्टर नहीं था, बहुत सारे ट्रिगर फैक्टर सब मिला के इट रीच टू अ बॉइलिंग पॉइंट. Yeah, मैं तो I get very emotional when I hear of Archikar thing. But you tell me one thing. They have Can so I many. take a moment? Can I take a moment? Since again you brought up Arjikar. Payal ji, I've met, मैं काकीमा, हम लोग काकीमा मतलब चाची जी. I've met her a couple of times. I went to her house also before she became our candidate. Every time she's like very lean, lanky, very thin lady. जो उनका था उससे भी बहुत मतलब she's just, I will say, skeleton and just some skin. That's it. मैं जब एक बार उनके घर पे मैं जानबूझ के खाना, मैंने कहा कि आप मेरे लिए चावल बनाओ, मैं खाऊंगी आपके साथ. वो ऐसे चावल मुंह में लेके 2-3 बार खा के रोने लगी. और अंकल बता रहे थे कि ये हर रोज का शेड्यूल है, वो खाना नहीं खा सकती. शी इज जस्ट लाइक अ लिविंग डेड पर्सन. अपने बच्ची की लाश, वो जब भी एक कदम चलती है ना, बच्ची की लाश वो अपने कंधे पे लेके चल रही है. और इसको तृणमूल ने घेर कर क्या क्या नहीं बोला. गो बैक, अपनी बच्ची से धंधा करवा रही है, मृत बच्ची से, ऐसे ऐसे बातें. सो दिस इज तृणमूल फॉर यू. इन केस यू डोंट नो, इन केस योर व्यूअर्स आर नॉट अवेयर, दिस इज तृणमूल फॉर यू. But मैं I'm so surprised. जब ये women reservation bill चल रहा था तो ममता बनर्जी was saying हमको क्या women reservation का बोल रहे हैं, हमारे पास तो maximum women MPs हैं and MLAs हैं. आप मुझे एक बात बताओ, क्या एक भी woman MP ने resign नहीं किया आरजी करके बाद? एक ने भी justice नहीं मांगी? क्यों करेंगे? तो मेरा भी Sorry, even I get very usually emotional. I don't get emotional. I have seen things, but when it comes to her, na, all the logic stops actually. Everything stops. Anyways, Same here. I also so get very like you said that women's reservation. Okay, well, let me rewind a bit. When Mamata Banerjee back in 2009, when she got around 28 or 30 MPs, that was the wind of change for her, and she was in associated with the UPA 2 government. मुझे बताइए, apart from Mamata Banerjee as the rail minister, उन्होंने कौन से लड़की मतलब फीमेल को कोई कैबिनेट रैंक में आने दिया? She had 30 odd MPs. She could have bargained at least, if not 2, at least 1 more cabinet rank women MP. नहीं दिया. उन्होंने the late मुकुल रॉय को शिपिंग मिनिस्टर बनाया, वो भी MOS. और एक शायद शौकत अदा को शायद इसमें PWD वो इसमें बनाया था, वो भी MOS. She didn't let any female MP come. अच्छा, आप बताइए, अब तो इनके पास इतने सारे फीमेल MLAs है, कितने लेडीज है? How many women representatives does she have in her cabinet? So Mamata Banerjee should practice what she preaches. And very frankly speaking, Mamata Banerjee, she's a vehement liar. Vehement liar. वो तो नैरेटिव सेट करने में ये लोग फर्स्ट क्लास होते हैं. हाँ, कुछ भी बोल दो. वो बोल रही है कि सीआरपीएफ घर घर जा रहे हैं, घर में छापा लगा रहे, ये लगा रहे. अरे आप एक भी वीडियो दिखाओ, सीआरपीएफ घर घर जा रहे हैं गुंडों की. ये गुंडे की बात अमित शाह जी ने कहा है कि गुंडों को उल्टा टांग के सीधा कर दूंगा. तो ममता बनर्जी या तृणमूल को इतने मिर्ची क्यों लग रही है? गुंडे के बारे में बात किया है उन्होंने. अगर वो सचमुच पश्चिम बंगाल की भलाई चाहती तो बोलते हाँ सही है, गुंडों को कंट्रोल करना चाहिए. वो खुद बोलती है कि अरे मैं गुंडा कंट्रोल करती हूँ. सो व्हेन इट कम्स टू ममता Banerjee, she is what should I say? She distorts the truth, or if I want to be brutally honest with you, she lies. वो तो महुआ भी दिखता है ना, वो तो पार्लियामेंट में भी दिखता है. आप क्या आपको कभी डर है? But why isn't she being punished? She will be. She has circulated a fake video. किसी ने उनका कोई chat, allegedly उनका chat कोई circulate कर दिया. Very frankly speaking, as a woman, I feel that's a personal life. ठीक है, लेकिन आप दूसरों पे अगर उंगली करोगे तो दूसरों तुमको थोड़ी छोड़ेंगे, है ना? Regularly वो दूसरों को, इसलिए she is a person, she kind of
slut shames people. तो when it And comes to you, then accept करो that ये झूठ है. तो मेरे ख्याल से उनके खिलाफ और जिन्होंने भी उसको सर्कुलेट किया है उन हर किसी के खिलाफ FIR दर्ज हो रही है. Very soon she will face the music. And सबसे बड़ी बात ये है कि ये the kind of language all the leaders are using for the PM, for Mr. Amit Shah, मोटे चले जाए यहाँ से, PM resign कर दे. How they मतलब they're so uncouth and what is this Bengal अस्मिता? ये लोग पूरा दिन बंगाल कल्चर और अस्मिता की बात करते हैं. विवेकानंद जी का स्टेट है, सुभाष चंद्र बोस जी का स्टेट है, रविंद्रनाथ जी का स्टेट है, पर मुझे तो एक भी क्वालिटी नहीं लगी इनमें, इन महान नेता लोगों की, उसके जो पूरा टाइम बंगाल आइडेंटिटी की बात करते हैं. एंड दे आर नॉट, मतलब नन ऑफ देम, यू कांट गिव एन एग्जांपल ऑफ एनी वन ऑफ देम मिनिस्टर्स कि वो coming to Bengal Ashmita. First of all, Bengal Ashmita, we are proud Bengali, but we are proud Indians first. हाँ, वही I'm मेरे proud. को भारत है इसीलिए हम है पायल जी. देश है इसीलिए हम है. नहीं तो कहाँ आप दिल्ली की बात करोगे, कहाँ कोई महाराष्ट्र की बात करेगा, कहाँ चेन्नई की, तमिलनाडु की बात करोगे, तमिल प्राइड, कन्नडिका प्राइड, मलयाली प्राइड, बंगाली हाँ, यही प्राइड, ये करते क्या रहो. क्या होता है? ये डिविजिवनेस क्यों? अब बंगाली अस्मिता पे आते हैं. मजेदार बात कर रही हूँ. ममता बनर्जी की एक मिनिस्टर है चंद्रिमा भट्टाचार्य, एक पुराना वीडियो है सर्कुलेट हुआ था. उनको हमारा जो राष्ट्र गीत है जनगण मन नेशनल एंथम उनको मालूम नहीं है. ये बंगाली अस्मिता के बात करते हैं. अब चले आओ ममता बनर्जी, वो खुद पे जब वंदे मातरम के 150 साल सारा देश मना रहा है, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में नहीं मनाया गया सरकार के ओर से. अच्छा, ममता बनर्जी, उनका मैं वीडियो थोड़ी देर में, एक्चुअली आई वाज वंडरिंग कि आज तो थोड़ा सा फ्री हूँ, थोड़ा सा मस्ती मजाक किया जाए, तो लोगों को दिखाना कि दिस इज ममता बनर्जी फॉर यू. उनको वंदे मातरम का पूरा लाइन, जो फर्स्ट लाइन, वो भी मालूम नहीं है. ममता बनर्जी बंगाली प्राइड बोलती है. अच्छा, और भी मजेदार चीजें आपको बोल रही हूँ मैं. 4 नाम ले रही हूँ: कीर्ति आजाद, शत्रुघ्न सिन्हा, यूसुफ पठान, साकेत गोखेल, फॉर दैट मैटर सागरिका घोष. ये सब कहाँ के हैं? पहली बात ये है कि अगर मैं थोड़ा सा अपना हृदय का परिवर्तन करके थोड़ा सा लिबरल भी हो जाऊं, सागरिका घोष बंगाली है, ठीक है, वो भी घोष, मैं भी घोष, ठीक है, बट ये बाकी सारे कहाँ के हैं? राजीव कुमार, मानिका गुरुस्वामी, ये कहाँ के हैं? ये तो रिसेंट है. मतलब जब आपका चुनाव आएगा या भारतीय जनता पार्टी की बात आएगी तब बंगाली अस्मिता. बांग्लार में ममता बनर्जी को ये पता होना चाहिए, बांग्लार में मैं भी हूँ. हु इज महामैत्र टू से जो लोग टीएमसी के साथ नहीं है वो बंगाली नहीं है? वो तो खुद ओडिशा की बहू है, पहले कोई फॉरेन कंट्री की बहू थी. हु इज शी? उनको मालूम चलना चाहिए कि 45% पीपल हैड वोटेड फॉर तृणमूल. वो SIR डिलीशन के बाद कम हो जाएगा, अपने औकात पे वो लोग आ जाएंगे. 55% पीपल उन्हीं के हिसाब के मुताबिक दे वर अगेंस्ट तृणमूल. तो 55% बंगाली नहीं है. उनका मतलब ये दुस्साहस कैसे हो गया? अच्छा, तीसरी बात, जब ममता बनर्जी के खुद के आप इसमें देखोगे कैंडिडेट लिस्ट में, वो कितने सारे नॉन बंगालीज को इसमें लड़ा रही है चुनाव में, तब कहाँ जाता है आपका बंगाली अस्मिता? और जो पार्टी की नींव डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखे हैं, बंगाली रखे हैं, जिनका फादर को बंगाली में बांग्लार बाघ बोलते थे, बंगाल टाइगर, सर आशुतोष मुखर्जी, उनका सुपुत्र डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी. इनका मतलब दुस्साहस देखिए, सी देयर ऑडेसिटी. दे आर कॉलिंग बंगाल भारतीय जनता पार्टी एज एन बहिरागत पार्टी, आउटसाइडर पार्टी. तो अपने गिरवान में झांक के देखो. और मजेदार चीज लास्ट, ये आपको बड़ा मजा आएगा. तृणमूल का क्या स्लोगन है? जय बांग्ला. जय बांग्ला बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान का बांग्लादेश के लिए उनका स्लोगन था. माँ माटी मानुष, ये भी बांग्लादेश का एक लीडर का स्लोगन था. खेला हॉबी, वो भी अवामी लीग का कोई लीडर का स्लोगन था. तो इनका जो स्लोगन ही है बांग्लादेश का है. और हमारा स्लोगन क्या है? जय हिंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और भारत माता की जय. वो भी एक बंगाली ने ही लिखा था, एक उनका किरण चंद्र बंदोपाध्याय, उनका एक प्ले था, उसमें लिखा था. हम जो भारत माता की पूजा करते हैं, इनका छवि किसने आंका था? अविनेंद्रनाथ ठाकुर. तो ये बोलते हैं कि बीजेपी बहिरागत पार्टी है. मैं बोलती हूँ कि बीजेपी बहिरागत पार्टी है, वो छोड़ दो. अपना सोचो, तुम पश्चिम बांग्लादेश की पार्टी हो, पश्चिम बंगाल की पार्टी नहीं हो. अच्छा, क्या आपको 2021 की ममता में और ये 26 की ममता में इलेक्शन के टाइम आपको क्या डिफरेंस लगा? मुझे बहुत लगा, पर आप बताओ आपको क्या लगा एज अ कार्यकर्ता? There's a popular phrase in Bengali, जेने गेছে জনতা ভয় পেয়েছে মমতা. मतलब जनता जान गई है, ममता डर गई है.
है, मोटा मोटा इसका ट्रांसलेशन यही आता है। ममता बनर्जी, शी, इफ इट आस्क मी न्यूट्रली, शी अपीयर्ड वेरी शेकन। द बिगेस्ट एग्जांपल मैं दे रही हूँ, ममता बनर्जी इतने सालों से, मैं पहले जर्नलिस्ट हुआ करती थी, उसके बाद में पार्टी में आई, इतने सालों से ममता बनर्जी का चुनाव हमने देखा है, कवर भी किया है। वो हमेशा चुनाव के दिन घर से नहीं निकलती है, 4 बजे आती है, उनका जो एकदम गली के उल्टे तरफ, रास्ते के उल्टे तरफ जो ये है पोलिंग बूथ है, मित्र इंस्टीट्यूशन, वहां पर जाके पोल दे के फिर जो पत्रकार है उनसे कुछ बात करके वी साइन दिखा के चली आती है। इस बार पहली बार वो आम कैंडिडेट्स की तरह सुबह 7 बजे निकल गई, बूथ टू बूथ घूम रही है, और अभी से लग रहा है कि वो विपक्ष में आ गई है, ऐसे बोल रही है कि ये पुलिस बात नहीं सुन रही है, चुनाव आयोग बात नहीं सुन रहा है, ये नहीं हो रहा है। मुझे तो बड़ा मजा आया, थैंक्स टू बीजेपी, थैंक्स टू शुभेंदु अधिकारी, कि ममता बनर्जी को घर से निकाल के एक आम कैंडिडेट की तरह उनको कॉन्टेस्ट करवाया गया। तो ये ममता बनर्जी इज शेकन। और इतने रैलियों में जब वो बात कर रही थी, जो बोल रही थी, जो उनका जो फ्रस्ट्रेशन साफ दिख रहा था अपने, मतलब कोई भी नॉर्मल आदमी, कोई भी नॉर्मल इंसान, वो भी दिख रहे थे कि हर किसी को, मतलब जैसे वो बोल रही थी, तो शी इज शेकन। और आपको लगा कि वेस्ट बंगाल की पुलिस, बल्कि कोलकाता की पुलिस भी डिफरेंट बिहेव कर रही थी? हाँ, कालीघाट जो ममता बनर्जी की घर है, गढ़ है, वहां पर उनका भाई और उनका जो भाभी जी है, भाई का जो पत्नी है, वो बोरो चेयरमैन है, पार्षद है केएमसी में, उन लोग बैठ के अपना जैसे करते हैं हर बार, बहुत लोग बैठ के झुंड मिला के बैठे थे। तो कालीघाट के पुलिस स्टेशन की पुलिस आके कहा कि आप लोग यहाँ पर नहीं बैठ सकते। तो वो उन्होंने कहा कि ये क्लब है, घर है, बाहर बैठ सकते हो? नहीं, अगर बैठना है 4 लोगों की ज्यादा आप बैठ नहीं सकते हो, यहाँ पर 4 बैठो, वहां पर 4 बैठो, वहां पर 4 बैठो। तो पुलिस उनको भी, मतलब निडर होके अपना काम करे, खुलेआम अपना काम कर रही है। आपने और एक वीडियो देखा होगा, बहुत वायरल हुआ, बर्धमान में एक वहां का जो लोकल काउंसिलर है, वो बीच रास्ते में आके भाई साहब बैठ गए, उनको लगा कि चलो हमारा ही राज है, तो सीआरपीएफ ने उनको भी हटाया, उनका चेयर को ऐसा लात मारा, फुटबॉल भी, मतलब मेसी भी देख के उनका दिल भी खुश हो जाएगा। तो पुलिस उनको फ्री हैंड दिया गया था कि अपना काम करो, किसी का पक्षपात मत करो, बस जो आपको गलत लगे तो गलत को आप ठीक करो। तो पुलिस ने अपना काम किया है। कहते हैं कि जब सत्ता बदलने वाली होती है, पुलिस वालों को सबसे पहले पता होता है। अगर नहीं बदल रही होती सत्ता, तो आई डोंट थिंक सो पुलिस सुनती, क्योंकि फिर बाद में ममता बनर्जी ने उनकी क्लास ले आई थी। व्हाट इज दिस होल सीन अबाउट थिंग अबाउट अभिषेक बनर्जी? इतना ज्यादा ही बिहेव्स लाइक अ स्पॉइल्ड चाइल्ड, एंड वो जिस तरीके की बातें भी करता है, धमकी देता है, मुझे तो ऐसे लगता है ही मस्ट हैव कॉल्ड अप अमित शाह एंड सेड कि मैं आपको गालियां देने वाला हूँ, मैं आपको धमकी देने वाला हूँ, प्लीज मुझे कुछ कहना मत बाद में, पर वो मेरे को थोड़ी इज्जत रखने दो, अपनी हार तो हम रहे ही हैं। मुझे ऐसे लगा जैसे कि अमित शाह, बिकॉज ही वांटेड अ रिएक्शन फ्रॉम मिस्टर अमित शाह, ही डिडंट गेट इट। पर उसके पास इतनी करप्शन है, आपको लगता है वो देश छोड़ के भागेगा नहीं? वेल, ये जो हमारे मतलब सरकार है ना, केंद्रीय सरकार, और उनके जो गृह मंत्री है जिनका नाम आपने लिया है, इट्स अ वेरी टफ पर्सन, वेरी टफ पर्सन। तो कोई भी घोटाला हो, कोई भी चोरी हो, कोई भी इससे बच नहीं पाएगा, आज नहीं तो कल। जो समझ रहे हैं कि मुझे बेल मिल गया है, वो बड़ा तोप समझ रहा है। आपको याद दिला दे, लालू प्रसाद को भी बेल मिला था, केजरीवाल जी को भी बेल मिला था, तो बाद में उनको जेल हुआ था। कोई भी घोटाला करो, कुछ भी करो, आप मतलब छूट नहीं पाओगे इसे। आई थिंक आई हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन। दूसरी बात, हिज और मतलब एरोगेंस, ये बोल रहा है कि अमित शाह को बोल रहा है कि एक बाप का बेटा है, विच शोज हिज काइंड ऑफ अपब्रिंगिंग। कितना घटिया अपब्रिंगिंग हुआ होगा। आई फील सॉरी फॉर हिज पेरेंट्स दैट इतना घटिया अपब्रिंगिंग दिया अपने बच्चा को, कि देश की गृह मंत्री, अच्छा गृह मंत्री छोड़ो, बीजेपी का है छोड़ो, तुमसे उम्र में बड़े हैं, तो इतना सम्मान देना चाहिए। लेकिन वेल, जिस पार्टी में सम्मान की बात ही नहीं है, तो जिसमें जितना आप गाली दोगे, जितना गालीबाज होगे, जितना आप एरोगेंस दिखाओगे, उतना आपका प्रमोशन है। तो ये तृणमूल का ही कल्चर है, ये बंगाली अस्मिता नहीं है। प्लीज लेट मी पुट अ स्टैट्यूटरी वार्निंग टू दिस। सेकंड ये है कि अभिषेक बैनर्जी 2008-9 जब ममता बनर्जी सिंगूर नंदीग्राम लेके जब आंदोलन वाकई कर रही थी, कहाँ थे वो? ही वॉज नॉट नेवर टू बी सीन। वो 13 या 14 में मेरे ख्याल से उनको पैराशूट लैंडिंग उनका करवाया गया था। तो जो ऑपोजिशन में रह के लेफ्ट के जमाने में उसका ऑपोजिशन पॉलिटिक्स नहीं किया होगा, उनको कैसे पता लगेगा? अगर किसी की बुआ, अगर आपकी भी बुआ या आपका भी कोई भतीजा अगर सीएम होते, तो आप भी अपना जलवा दिखा देते। आपको पॉलिटिक्स में अगर चाहे आपका कुछ ये क्रेडिबिलिटी हो चाहे नहीं हो, तो इनका साफ ही वही है, बुआ है, जहां पर हाथ रख देगा वही वो जगह अपना हो जाएगा, ऐसा करके। मतलब सोचिए, उसका एक कंपनी है लीप्स अनबाउंड, जिसमें वो सीईओ है या एमडी है। उस कंपनी में मतलब
जो इनकम मोर देन द, क्या कहते हैं उसको, लाइन, as income as more than the business, I believe. Okay, हाँ, disparity of income जिसमें था, हम्म, तो वो कंपनी के एसेट्स फ्रीज कर दिया गया. इट इज आई थिंक मोर देन 20-25 सीआर्स. ममता बनर्जी फिर अभिषेक का साइड लेके बोलती है कि ये बच्चा लड़का, इसका कंपनी, इसका बिजनेस को फ्रीज कर दिया गया. ममता बनर्जी इज एब्सोल्युटली साइडिंग विद द करप्शन. तुम्हारा एसेट्स इतना बढ़ा क्यों, जबकि तुम्हारा बिजनेस का वॉल्यूम ये नहीं है, ये नहीं पूछोगे. फिर बोले कि बच्चा है, इसका संसार है, कैसे चलेगा. अरे वो सांसद है, उसको बकायदा तनख्वाह मिलता है, और जितना तनख्वाह मिलता है बंगाल में रह के, आप 2 बच्चे और बीवी को अगर नहीं पाल सकते हो, तो मतलब आप बहुत बड़े बड़े शौक पाल रखे हो. he's got a mansion, I believe, कह रहे पूरा यस, एरिया. जो उसके नाम पे नहीं है ऑफिशियली. पूरा एरिया घेर के रखता है. पता नहीं वो कौन लाट साहब है. डोंट वरी पायल जी, 4 मई के बाद वो एकदम आम एक कोई एमपी है. हमारे एमपी को देखिए ना, ऐसे घूमते रहेंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा. हमारे एमएलए इतने डाउन टू अर्थ है. चंदना दी है सालतोड़ा की, चंदना बावड़ी जी, शी वॉज अ डेली वेज लेबरर. मतलब इतनी सुंदर, उनका सुंदर व्यवहार है. पीछे से आके एक से जकड़ लेगी, दीदी कैसी है करके. और इनका अकड़ देखिए. असल में वो मैंने पहले ही बोल दिया, अगर बुआ आपका सीएम है तो राम जाने आप क्या. अच्छा, राम तो टीएमसी के बारे में मैं बोल नहीं सकती, तो उनका रहीम जाने क्या होगा उनका. एक मेरा लास्ट प्रश्न है आपसे. women this time, there were a lot of women who were very open and they were like being very frank and blunt and they were saying कि बस ये करें. कई लोग they were murmuring and they were saying कि ऐसे परिवर्तन ऐसे they were saying like this. पर women के अंदर आपने 21 और 26 की women के अंदर चेंज देखा है ना? डेफिनेटली देखा. देखिए, ममता बनर्जी जो 1000 अभी जो बढ़ा के वो 1500 दिया था, लोगों को समझ में आ रहा है कि ममता बनर्जी ये 1500 दे रही है, लेकिन उनके घर के जो मर्द है, जो दादा हम लोग बोलते हैं, उनका नौकरी नहीं है. एक हाथ से वो दे रही है, 4 हाथ से वापस ले रही है. वो बोल रही है कि हम ये देंगे, कन्याश्री देंगे. भारतीय जनता पार्टी, हम लोग जब सत्ता में आएंगे, अब तो मैं खुल के बोल भी सकती हूँ, जो ग्रेजुएशन पढ़ने वाली अविवाहित बच्चे होंगे, बच्चियां होंगी, 51,000 उनको एजुकेशन हाँ, के लिए हम लोग यूपी में भी सहायता है. करेंगे. 51,000 बच्ची को, और ये देती है 26,000. उसके ऊपर टीएमसी का कट अलग, तो एक बच्चे ओ को गॉड. 10-15 हजार मिलता है. यहाँ हर चीज में ये लोग, मतलब अगर डीबीटी भी होता है, वो स्कैनर लेके पहुंच जाते हैं कि अपने अकाउंट से भेज दो. तो औरतें जो है, उनको लग रहा है कि एक तो भारतीय जनता पार्टी हमें 3,000 देगी, लेकिन जो वो समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है. अमित उसके शाह जी लिए ने कहा है, हमारे लीडर्स ने कहा है कि जो रेपिस्ट होंगे या मोलेस्टर्स को, रेपिस्ट खासकर, सुबह उसका गिरफ्तार, शाम तक उसका तिरस्कार. वो कैसे भी आप सोच लो, उसको खर्च कर दिया जाएगा. जीरो टॉलरेंस. और फिलहाल बंगाल में ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर है. मैं क्यों बोल रही हूँ, सोचिए कि आप अपर स्टेट ऑफ द सोसाइटी में बिलोंग करती है. आपके बच्ची मेडिकल में चांस मिल गया उसको, वो अगर नाइट ड्यूटी पे जाएगी, कोई भी माँ दिल पे हाथ रख के मुझे बोल दे कि मैं चैन से सो पाऊंगी, कोई भी माँ नहीं सो पाएगी. मैं दावे के साथ कह रही हूँ. एंड आई हैव एब्सोल्युटली फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, बिकॉज मेरी बेटी की उसके सबसे बेस्ट फ्रेंड है, उसको मेडिकल में चांस मिला है. तो वो जब इसमें जाती है कॉलेज में, उसके माम ने मुझे फोन करके कहा कि क्या मैं सो नहीं पाऊंगी, मेरे बच्चे में जब मैं सोच में, मतलब ये नाइट ड्यूटी होगा तो मुझे बस वो अर्ज कर आएगा. अच्छा, नाइट का छोड़ो, आपके बच्ची इसमें जा रही है, लॉ पढ़ने जा रही है, कस्बा लॉ कॉलेज. तृणमूल के नेता ने वो बच्ची को रेप किया, गैंग रेप किया, वीडियो उतारा उसका. नॉर्मल कॉलेज जाओ, लॉ छोड़ो, नॉर्मल कॉलेज में टीएमसी के दादाओं को, आई एम सॉरी, आई हैव टू यूज दिस वर्ड, गंदे जगह पे उनको मालिश करना पड़ेगा चरम सुख देने के लिए. तो बंगाल में वुमेन सेफ्टी, इट्स अ वेरी बिग थिंग. जितना आप लोग को पास खबर जाता है, उससे ज्यादा यहाँ पर कारपेट यहाँ के पे अंदर है. खबर घुसा जाता है. और ममता बनर्जी बोलती है कि देखिए एनसीआरबी रिपोर्ट में आया है, बंगाल में रेप इतना कम है, आप लोग बदनाम करे हो. अरे एनसीआरबी रिपोर्ट में तो आप लोग डालते नहीं हो, दर्ज एफआईआर ही नहीं नहीं कराते करोगे तो हो. कैसे? हाँ. प्रिसाइसली, दर्ज नहीं कराते हो आप लोग एफआईआर. एक छोटी बच्ची की घटना में आपको बताना चाहूंगी कि कैसे निर्मम सरकार है. मेरे ख्याल से 8-10 साल की बच्ची होगी, ज्यादा नहीं. हमारा न्यू टाउन है एक जगह, कोलकाता से थोड़ा थोड़ा बाहर, वहां पर एक बच्ची का मोलेस्टेशन हुआ था. तो उसके फादर ने लेके आके थाना में रिपोर्ट दर्ज कराने आए थे. तो पंचायत का, तृणमूल का कोई मुल्ला नेता था. तो पुलिस क्या कहा कि चलो, तुम लोग बहुत बहुत गरीब थे. थाने के बिल्कुल बाजू में एक छोटा सा, वो छोटा होटल नहीं होता भात खाने के लिए, चावल खाने के लिए, उसमें उन लोग को पेट भर के चिकन भात, माछ भात सब खिलाया. फिर बोले कि अब कुछ ये मत करो, 500,000 रख लो, बाद में कुछ होगा तो फिर आना. मतलब बाद में बच्चा का रेप हो जाए, बाद में बच्चा का वो रेप करके मर्डर हो जाए, फिर आना. दिस इज द काइंड ऑफ, और ये पुलिस की गलती मैं नहीं बोलूंगी पायल जी, दिस इज द
the fault of the police minister, the female police minister which we had, जिसको सोचा था कि वो हमारे women के बारे में at least she would be empathetic. So this is the kind of culture पश्चिम बंगाल में है. तो women जो है motivated इसीलिए होंगे. एक तो उनके बच्चे बंगाल से बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि बंगाल में इंडस्ट्री आएगी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आएंगी, जॉब्स क्रिएटेड होंगे. दूसरी फैक्टर ये है कि सेफ्टी फैक्टर. 80 साल के एक नन को राना घाट में रेप किया गया था. आपको याद होगा कि नहीं, मुझे मालूम नहीं है. मैं बोल रही हूँ 2018-19 में राना घाट में एक नन की उसके मिशनरी में अंदर जाके और बांग्लादेशियों ने घुसपैठिया ने रेप किया था. तो जो बॉर्डरिंग एरिया में जो लोग रहते हैं ना, औरतें, हिंदू औरतें, उनको मालूम है कि एक वोट बीजेपी को देने का महत्व क्या है. तो वुमेन सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस बेटर फ्यूचर, व्हाट शुड आई से, एंड मोर इम्पोर्टेंटली ममता को, मतलब ये जो घुटन की जो वातावरण है ये जाएगा. तो वुमेन फोर्स इस बार 21 के मुकाबले, और वो बहुत इस बार चुप भी रहे हैं, हाथ से दिखा रहे हैं, आश्वास कर रहे हैं, बिकॉज आई हैव ट्रैवल्ड all through South Bengal. So I have seen the women. They have tried to connect with us. Thank you so much, Kia. Thank you. It was a pleasure talking to you. Thank you. Same here. Thanks so much for taking out time.